السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 58 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الخلق فصلوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، رواہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا رکھے۔ یہ حدیث پہ لوگوں نے بڑی تشریح کی ہے اور میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دو طریقے کے لوگ ہیں، غور سے سنیے گا۔ دو طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی کپڑا پہنے ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ کپڑے سے تشریح دی گئی ہے۔ جو کپڑا پہنے ہی نہیں ہے اس کا کپڑا کیا گندا ہوگا؟ گندا تو اس کا کپڑا ہوگا جس نے کپڑا پہن رکھا ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد ایمان کا کوئی تقاضا کر ہی نہیں رہا ہے، جب سے جوان ہوا ہے، نہ روزے کی، نہ نماز کی، نہ اپنی منمانی زندگی کر رہا ہے، یہ حدیث اس سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ اس کا تو ایک الگ فنڈا ہے کہ وہ اپنے پہلے ایمان کو شعوری انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے، وہ اس سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ کپڑا گندا اس کا ہوگا جو کپڑا پہنے ہے۔ جو کپڑا ہی نہیں پہنے ہیں اس کے کپڑے کے گندا ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں بنیادی چیز ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں نے، تشریح کرنے والوں نے اس کو اگنور کیا، مطلب اس بات کو نہ کہہ کر ڈائریکٹ سب کو لپیٹا، کیونکہ اگر سب کو کہا جائے گا جو ننگا ہے تو اس کو تو پہلے یہ بتاؤ کہ کپڑا پہنو بھائی۔ ننگے آدمی کو پہلے کیا بولنا ہے کہ بھیا کپڑا پہن لو پہلے۔ تو ہم جب ایمان والے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اگر ہم نے اس پر کچھ بھی عمل نہیں کیا، اس کا تقاضا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا دین کیا ہے، وہ تو پورا اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑا ہی پہنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لا کر کے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ کیسا ایمان والا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور ایمان کے کام بھی کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ اسی مسجد میں دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فجر میں پابندی سے نہیں آتے ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ظہر میں پابندی سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ ایمان والے بھی ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ ایمان والے بھی ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جیسے سود، جو یہ پوری ناراضگی رب کی جو ہمارے پورے عالم میں اس وقت ہے، حدیث کی روشنی میں، کہ دو کام جب دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ویسے تو ناراضگی کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن پورے لوگوں کو وبا میں مبتلا کر دے، اس کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ ہوتی ہے سود کا عام ہونا، نمبر دو بے حیائی کا ہونا۔ بے حیائی میں صرف کپڑا نہیں ہے کہ عورت کپڑا غلط پہن رہی ہے، سب کچھ بے حیائی میں داخل ہے۔ اب آپ دیکھیں، سود کی جہاں تک بات، ہم سمجھتے ہیں ہم نے سود میں تو لیا ہی نہیں ہوں۔ گھر بنانے کے لیے لوگ سود پر لون لیتے ہیں، کسی کو اتا پتہ بھی نہیں ہے اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ اپنی لگژری لائف کے لیے گاڑی خریدنا ہے، سود پہ لون لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل لینا ہے، سود پر لون لیتے ہیں۔
तिजारत को फरोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सूद पे लोन लेते हैं। लीज पर मकान, दुकान एक आम बात हो चुकी है। इन चीजों को लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि ये सूद है, क्योंकि सूद के बारे में जो कुरान मजीद ने कहा है कि तुमने अल्लाह से जंग का ऐलान कर दिया। अब आप बताइए कि कोई आदमी कहे अल्लाह मैं आपसे जंग करना चाहता हूं, तो क्या पोजीशन होगी उसकी? भाई हाथी के मुकाबले में चींटी बोले कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहती हूं, तो क्या नतीजा निकलना है? वो जो नतीजा निकलना चाहिए वो नतीजा निकलना है। तो एक होता है कि ईमान लाने के बाद भी सब काम करते रहना और ईमान के खिलाफ भी करते रहना, तो कपड़ा गंदा होता रहता है, ईमान गंदा होता रहता है। ईमान गंदा होने, एक जगह दूसरी हदीस में क्या आया है कि लोगों ईमान में जंग लग जाता है। लोहे से मिसाल दी है। लोहे में जंग कब लगता है? आप अगर उसको धूप और पानी से नहीं बचाएंगे, लोहे को ऐसे फेंक दे, मैदान में रख दे, लोहा क्या होगा? जंग लग जाएगा। ऐसे ही ईमान को, अगर ईमान, जिन चीजों से ईमान डिस्टर्ब होता है, अगर उससे हिफाजत नहीं की जाएगी तो ईमान में भी जंग लग जाएगा। तो कहीं जंग लगने से कहीं बात कही गई है और कहीं पर पुराने होने से बात कही गई है। यहां पर जो बात कही है कि ईमान पुराना होता है, दोनों का मतलब यह है कि ईमान कमजोर होता है। एक जुमले में कि ईमान कमजोर होता है। लेकिन फिर मैं ये जुमला बोलना चाहता हूं, ये उन लोगों से बात कही जा रही है जो ईमान वाले हैं और ईमान के तकाजे भी करते रहते हैं, लेकिन जैसा तकाजा करना है वैसा नहीं करते हैं, लिहाजा कपड़ा गंदा होता है। आपका कपड़ा कितना भी साफ हो, कपड़ा जिस वजह से गंदा होता है, अगर आप उसकी एहतियात नहीं करेंगे नतीजा क्या निकलेगा? आप अभी पहन के निकले हैं, मतलब एक आदमी एकदम जर्क कपड़ा पहन के निकले और कीचड़ में लौट जाए, नतीजा क्या निकलेगा? 1 मिनट में गंदा हो जाएगा। आप कोयले की दुकान में दाखिल हो जाएं, कोयले की दुकान वहां जा और वहां कोयले का काम शुरू कर देंगे, कपड़ा भले अभी पहन कर गए, कपड़ा 1 मिनट में गंदा हो जाएगा। तो इससे ही नहीं कि कपड़ा 2-3 दिन के बाद ही गंदा होता है, कपड़ा 1 मिनट सेकंड में भी क्या हो सकता है? गंदा हो सकता है। तो ईमान 1 मिनट में भी बर्बाद हो सकता है। बर्बाद से मुराद क्या है? कि कमजोर हो जाता है। वो ये बुनियादी बात है। अब ईमान कमजोर किन चीजों से होता है, तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर मैं एक एक शॉर्ट में बताऊं आपको, जो चीज अल्लाह ने कहा है कि छोड़ दो जिंदगी में, वो अगर नहीं छोड़ोगे ईमान हमेशा कमजोर होता रहेगा। यानी तर्के मासी जिसे कहते हैं, गुनाहों को छोड़ना। ये अगर गुनाह बंदा करेगा, आप तो छोड़ने की बात न करिए, गुनाह करेगा, ईमान हर हाल में क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। सीधी सी एक बात है। जैसे कीचड़ से कपड़ा गंदा होता है, कोयले से कपड़ा गंदा होता है, ऐसे ही जो है वो ईमान भी गुनाहों से गंदा होता है। नंबर 1 ये करने के काम है। नहीं करने के काम में फराइज अगर आप छोड़ेंगे तो भी ईमान कमजोर होगा। नमाज पढ़ रहे हैं, जब जी चाहता है पढ़ते हैं, जब जी चाहता है नहीं पढ़ते हैं, ये ईमान के कमजोर। और ये भी समझ लीजिए, ये ऐसा हुआ ही इसी वजह से है कि ईमान कमजोर हो गया है, वरना ईमानदारी से आपको बताते, खासकर नमाज के बारे में, जितनी शिद्दत के साथ अहादीसें नमाज पर आई हुई हैं, बहुत कम काम ऐसे हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो काफिर हो जाएंगे या कुफ्र का काम हो जाएगा, ऐसा बहुत कम कहा गया है। नमाज के बारे में बुखारी की रवायत है कि मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, कि जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब आप बताइए कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में अगर इस हदीस को नाफिज कर दिया जाए, हर घर में कुफ्र का काम हुआ कि नहीं हुआ? कुफ्र का काम हुआ। कुफ्र का काम जब किया गया तो ईमान यकीनी बात क्या होगा? कमजोर होगा। और अगर मैं ये दूसरे जुमले में ये कह दूं कि ईमान पहले कमजोर हो गया लिहाजा कुफ्र का काम हो गया, ईमान की हिफाजत की ही नहीं गई। भाई अभी बरसात में आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आप अपने कपड़े को बचाते हुए आए हैं कि कपड़ा गंदा ना होने पावे, है बात की नहीं है? अगर आप ये सोचते नहीं मैं कपड़ा पहनूं, मुझसे कोई बहस नहीं है, तो कपड़ा गंदा हो जाएगा।
अगर हिफाजत का तरीका हमको नहीं मालूम है कि बारिश में निकला जाए तो कपड़े की कैसे हिफाजत की जाए तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, और अगर ईमान की हिफाजत का तरीका नहीं मालूम है तो ईमान भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो एक होता है गुनाहों से ईमान कमजोर होता ही होता है, नंबर 1। नंबर 2, फराइज को छोड़ने से क्या होता है, ईमान कमजोर होता है। नंबर 3, अगर आपकी सोहबत से बोला जिसके साथ आप उठते बैठते हैं वो कौन लोग हैं, जिस टाइप के लोग होंगे वो उतना ईमान को मुतासिर करेंगे। अगर सब जितने भी बैठे हैं जुआरी हैं, शराबी हैं, नमाज छोड़ने वाले हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा तो यकीनी बात है कि वो भी आपके ईमान को क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। और यही होता है कि अगर आप इत्र की दुकान पर बैठे हैं, कुछ न करें तो भी खुशबू लेके निकलेंगे, लेकिन अगर कोयले की दुकान पे जाकर बैठे हैं, कितना भी एहतियात करेंगे तो कपड़ा काला होकर निकलेंगे। ऐसे ही सोबत कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, क्या लोगों तक़वा अख्तियार करो। कैसे तक़वा अख्तियार करो, कैसे अल्लाह का खौफ पैदा करो। अल्लाह ने कहा अच्छे लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ उठो बैठो। अगर बैठक भी खराब होगी तो भी नतीजा क्या निकलेगा, गुनाह होना ही होना है, फराइज छूटना ही छूटना है। तो ये जो बैठक होती है ये बहुत ज्यादा जिंदगी में अपने असरात मुरतब करती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अब जैसे आप काफिर के साथ रहें हर वक्त, तो काफिर के साथ रहने में उसके कुफ्र के असरात क्या होंगे, आपके ऊपर मुरतब होंगे। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो कभी आप कहेंगे कि मौलाना साहब अगर उनके यहाँ पूजा हो रही है, हमारा दोस्त है, मैं जा सकता हूं कि नहीं, आप ऐसे मसला पूछेंगे। कभी कहेंगे मौलाना साहब उसने होली दिवाली में हमको जो है वो मिठाई दिया है, प्रसाद दिया है, मिठाई नहीं बोलो प्रसाद दिया है, मैं प्रसाद खा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसके असरात मुरतब हो गए। ये तो अल्लाह बचाता है बंदा जब कोशिश करता है। अगर बंदा कोशिश नहीं करता है तो फिर अल्लाह को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि आप नेक बन जाए, क्योंकि आपके नेक हमारे नेक बनने से परवरदिगार आलम की खुदाई में कोई इजाफा नहीं होता है, लिहाजा उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। आपको तो फिक्र है कि बच्चा कमाए, क्यों फिक्र है, ताकि हमारा बुढ़ापा सही हो जाए। आपको अपने बच्चे से मोहब्बत की वजह एक फितरी है और एक आपकी क्या है, मजबूरी और जरूरत है। वो मजबूरी और जरूरत अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह तो मोहब्बत करता है आपसे सिर्फ इस वजह से कि आप हम उसके बंदे हैं। जो आदमी जिस चीज को बनाता है उसकी बनाई हुई चीज से उसको प्यार होता है। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, उस कायनात में हमको भी बनाया है, लिहाजा हमसे उसको मोहब्बत है। वरना हमारे अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करता है उसकी कोई वजह, उसका फायदा नहीं है, वो क्योंकि वो जात क्या है, देने आ गए। तो तीसरी चीज क्या है कि अगर उठना बैठना गलत होगा तो भी क्या होगा, ईमान कमजोर होगा। चौथी चीज, अगर बहुत गौर से सुनिएगा, चौथी चीज, अगर इस्लाम के बारे में नाकिस मालूमात होगी, नाकिस समझते हैं कि पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं होगी, तो आप शक और शुबह में मुब्तला रहेंगे, नमाज भी पढ़ते रहेंगे और अंदर से ईमान भी हिलता रहेगा कि मालूम नहीं ये सही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि गलत मालूमात या नाकिस मालूमात दोनों में कोई चीज अगर आ जाएगी, नतीजा क्या निकलता है। आजकल नेट पे लोग बच्चे वहां से उठाते हैं, अब उसमें क्या है, नेट तो एक समंदर है जिसमें खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है, गंदा पानी भी है, महक वाला भी पानी है। अगर आपके अंदर सलाहियत है कि आप उसको फिल्टर करके मीठा पानी निकाल लें तो आपके लिए समंदर बेहतर है। लेकिन अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है और आप ये समझें कि मैं समंदर में गोता लगा करके निकल कर आ जाऊंगा, आप सब कुछ लेके निकलेंगे। अब अगर नाकिस मालूमात होगी या गलत मालूमात होगी तो भी ईमान को क्या करेगी, वो शक में डालेगी। वो कहते हमारे यहाँ मुहावरा है कि नीम हकीम खतरे जान। आधा हकीम अगर है तो अपनी जान के लिए मुसीबत है और सामने वाले के लिए मुसीबत है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। और अगर आधा मौलवी है तो वो भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको एक हदीस मालूम हो जाती है तो उसी को लेकर उड़ता है। मैं एक रिश्तेदारी में गया तो
कहे कि अभी बैठा ही था, थोड़ी देर बात हुई, उन्होंने कहा एक मसला बहुत जरूरी है जो बहुत दिन से सोच रहे हैं वो है। तो कहा कि हदीस में आया है और 3 साल से हम इस पर अमल कर रहे हैं। क्या हदीस में आया है? हदीस में आया है कि अगर किसी आदमी, सही हदीस है, कि अगर किसी आदमी का वजू टूटा लेकिन रिया खारिज हुई, गैस पास हुई, आवाज नहीं आई और बदबू नहीं आई, तो समझो उसका वजू नहीं टूटा। ये हदीस में है। अब उन्होंने इस हदीस को देख लिया, हदीस को देख करके 3 साल से वजू तोड़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी। 3 साल से वजू टूट रहा, जान रहे हैं कि गैस खारिज हुई है। अब उनको न 2 चीजें हैं कि साहब आवाज नहीं आई और बदबू नहीं है, लिहाजा वजू। ये क्या है? ये नाकिस मालूमात, गलत मालूम। हदीस सही है। ये हदीस किसके बारे में है? एक आदमी कह रहा है कि मुझे हर वक्त शक होता है कि मेरा वजू टूट गया, मेरा वजू टूट गया। उस शक का इलाज अल्लाह के रसूल ने उसके लिए पर्सनली जाती तौर पर किया। आपने उस हदीस को एक लगा करके बोला हमारे पास सुपर मार्केट है। ऐसी मालूमात जब हासिल होगी तो या तो आदमी गलत काम करेगा और या करेगा शक व शुबे में मुब्तला हो जाएगा। ये चौथी चीज है जो ईमान को क्या करती है? कमजोर करती चली जाती है। 5वीं चीज, अगर एक गौर से सुनिए, ये बहुत मेहनत से मैंने सब तकरीर तैयार किया। गुनाह सगीरा, छोटे गुनाह जिसको इंसान तवज्जो नहीं देता है, अगर गुनाह सगीरा लगातार करता रहेगा, नतीजा क्या निकलेगा कि ईमान कमजोर हो जाएगा। हर बात को अरे पूछते हैं, सवाल लोग पूछते हैं कि मकरूह है तहरीमी है कि हराम है, ऐसे पूछते लोग सवाल। 3, एक मकरूह होता है, एक मकरूह तहरीमी होता है, एक हराम होता है। तो पूछते मौलाना साहब ये मकरूह है, अगर मैंने कहा ये मकरूह है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको नोटिस में नहीं लाना चाह रहे हैं। छोटे छोटे गुनाह अगर बंदा करने का आदी हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है? ईमान का जो तकाजा होता है वो तो उस जगह को, उस काम को भी करना नहीं चाहता जिसमें उसको सही और गलत में शक हो जाता है। ईमान का तकाजा अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि अगर किसी चीज में आपको ये मालूम हो जाए कि ये काम जायज है, ये काम नाजायज है, तो आपने फरमाया कि उस काम में ना करना, अपने आप को महफूज रखना है। करना महफूज नहीं है, नहीं चलता है। ये जो चलता है कि बात जब सोचने लगते हैं तो ये दिन पर दिन अगर लगातार, क्योंकि पहले दिन आदमी छोटा ही गुनाह करता है, गुनाह का फिर आदी हो जाता है। मिसाल तो पहले एक आदमी दाढ़ी मुड़ाता है, दाढ़ी जब मुड़ाता है, अब मुंडाने का जब वो आदी हो गया है, उससे अगर आप पूछे कभी, एक हो सकता है कोई मजबूरी हो किसी की, वो एक उस पर बात नहीं, उसके दिमाग में ये बात है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, अगर सुन्नत को छोड़ दिए तो क्या है, चलता है। अब वो चलते चलते क्या हो गया उसका डेली, अब उसको एहसास भी नहीं होता है अपने दाढ़ी मुड़ाते हुए कि मैं गुनाह कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक लगातार काम अगर आपने गुनाह सगीरा, हालांकि गुनाह सगीरा नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। ये जो कहते हैं कि दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी का अमल सुन्नत है, दाढ़ी का अमल सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने जिक्र किया, हदीस में इसका जिक्र है, रसूल ने उसको हुक्म क्या लगाया, ये बात लोग नहीं समझते हैं। दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत, हुक्म क्या बयान फरमाया कि आपने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतराओ। जब हुक्म आपने दे दिया तो जो हुक्म बोलेंगे वो हुक्म हो जाएगा, फर्ज बोलेंगे फर्ज हो जाएगा। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जंगली गधा जिसको धोबी लोग इस्तेमाल करते हैं, जंगली गधा खाना क्या है, हराम है। कहा किसने है? कुरान में नहीं देख रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये समझ करके आप ये समझे कि साहब रसूल ने फरमाया लिहाजा ये तो हल्का है। कहा क्या उसके बारे में? कहा कि हराम है, कहा क्या हराम है। जो कहेंगे वो बात नाफिज होगी। हाँ, अगर नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, हुक्म ही नहीं लगाया, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या है, वो सुन्नत रह जाती है। लेकिन जब हुक्म लगा दिया जाता है तो वो क्या होती है, जो कहा जाएगा जुमला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, वो मानना पड़ेगा। लिहाजा ये बुनियादी चीजें होती हैं जिससे हमारा ईमान कमजोर होता है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम आगे बात करेंगे कि और 2 एक वजह है जिसकी वजह से ईमान कमजोर होता है।
ایک वजह बता कर खत्म कर दे ताकि बात हो जाए। जब बंदा बहुत ज्यादा परेशान और मुसीबत में आ जाता है तो भी ईमान क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसे वक्त में हमारे अल्लाह और रसूल की तरफ से हिदायत क्या है ना, उसको अगर वो सामने रखेगा तब वो मुसीबत और परेशानी के दिनों में अपने ईमान की हिफाजत कर पाएगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि फक्र कुफ्र की तरफ ले जाता है। भूखा हुआ है आदमी, हर वक्त खाना नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, जॉब नहीं, आपने फरमाया ये चीजें उसको कुफ्र की तरफ ले जा सकती हैं। इसीलिए हुजूर ने पनाह मांगी, अल्लाह ऐसा फक्र नहीं देना कि जो कुफ्र की तरफ ले जाए। तो पता क्या चला कि मुसीबत और परेशानी की वजह से भी बंदा क्या होता है, बंदा का ईमान कमजोर होता है। इन सब के मसले का हल क्या है, इंशाअल्लाह जिंदगी तो बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।